So today we'll learn how we can set up a certain page style. So what is a page style? It defines the basic layout of the page in a document. For example, page size, margin, header and footer, border, background or number of columns and so on. Right? The default style is automatically assigned to a particular page, but if we want to change the style as per our own choice, then we can do that, right? So how we can do that? Click on the format and then page. So a dialog box will open, then we can do the settings as per our own requirement, right? So next thing is this, how we can insert a page break in a document. So first of all, what is a page break? What happens is sometime if we go on entering the text, then automatically pages are created, right? Like I have created a document of 10 pages, right? But in certain situation, I want to break the page into another page, right? For example, this is a page. I want to break this page from here. Like I want that this text should appear on the next page. So how you can do that? So for this, you can click on insert, then page break from the menu bar, or the shortcut is just press Ctrl plus enter, right? Then next is how you can add header and footer. So what is a header? Like it is cleared from the name itself. What is a header? Which appears at the top of the page. Footer, which appears at the bottom of the page. Page number, like in book, the page numbers like 153, 154, these are the page numbers, right? So why we need to add header and footer to our page? Like जैसे for example हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने हर रिपोर्ट पे हेडर लगाया होता है जिसमें हॉस्पिटल का नेम, टाइम ऑटोमेटिकली आ जाता है. उनको बार बार से वो चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी पड़ती है ना, क्योंकि 1000 ऑफ पेशेंट्स के टेस्ट होते हैं, तो हर एक अगर रिपोर्ट पे वो खुद ऐड करेंगे फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो इसलिए ये फीचर बना है हेडर. हम एक बार लगा देते हैं तो वो सारे पेजेस पे अपने आप लग जाते हैं, ठीक है. हेडर जो है वो टॉप पे लगता है, फुटर जो है वो बॉटम पे लगता है. जैसे यहाँ पे देखो इस बुक में ये इन्होंने फुटर लगाया हुआ है, ठीक है. फुटर पे क्या है, एक तो पेज नंबर आ रहा है और इधर इन्होंने एक टेक्स्ट इंक्लूड किया है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. ये सारे पेजेस पे है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. ये हो गया पेज नंबर 155, ठीक है. ये हो गया 156, राइट. तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वो ये टेक्स्ट चेंज करते रहेंगे, राइट. सो दिस इज द पर्पस ऑफ हेडर एंड फुटर. So how you can insert header and footer? Select insert from the menu bar and then click on header and footer option, ठीक है. वो ऑप्शन आ जाएगी, तो वहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दोगे कि आपने अपने हेडर में क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, फुटर में क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, और कहाँ पे आप पेज नंबर अपना इंक्लूड करना चाहते हो. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेज नंबर जो है वो साइड पे आ रहा है, आप कहीं पे सेंटर पे होता है, कहीं पे इस कॉर्नर पे होता है. तो ये हमारी ऑप्शन है, राइट, वेयर वी वांट टू इंसर्ट आवर पेज नंबर. सो नेक्स्ट इज एडिंग बॉर्डर्स. बॉर्डर हम क्यों लगाते हैं? ताकि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंटिव बने, अट्रैक्टिव बने, राइट. देन है अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर. तो बैकग्राउंड कलर भी आप लगा सकते हो. कैसे लगाओगे? फर्स्ट सेलेक्ट द पैराग्राफ वेयर यू वांट टू ऐड द कलर, देन सेलेक्ट द एरिया टैब इन अ पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स, देन चूज द कलर बटन. Another way to do this is right click anywhere in the paragraph, then choose page from the context menu, then an area, then color, then select the particular color which you want to apply, then click on OK, right.
Next thing is we can insert images, shapes, special characters in our document, right? So how we can insert? Click on insert menu from the menu bar. Then here the option is coming image, right? तो इमेज पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आती है कि आपने इमेज कहाँ से उठा के लगानी है, कहाँ से इंसर्ट करानी है, गैलरी में से करानी है, किसी और डॉक्यूमेंट में से करानी है, क्लिप आर्ट में से करानी है, ठीक है। तो वो आपके पास ऑप्शंस आएंगे। देन दूसरा है आप इंसर्ट कर सकते हो शेप्स, ठीक है। तो शेप इंसर्ट करने के लिए आप शेप पे क्लिक करोगे, राइट। देन है स्पेशल करेक्टर्स। स्पेशल करेक्टर्स कौन से होते हैं? जो करेक्टर्स हमें विजिबल नहीं होते, राइट। जैसे आप टाइप करते हो, हम स्पेस प्रेस करते हैं, स्पेस तो हमें नहीं विजिबल होती ना, बट जब हम ये स्पेशल करेक्टर ये प्रेस करेंगे तो हमें स्पेस भी विजिबल होती। एंटर हम प्रेस करते हैं, वो हमें विजिबल नहीं होता। जब आप ये स्पेशल करेक्टर प्रेस करोगे तो ये सारी चीज़ें हमें विजिबल होंगी। अनदर थिंग इज़ हाउ टू डिवाइड द पेज इनटू कॉलम्स। हमने अपने पेज को कॉलम्स में डिवाइड करना है। लाइक मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें 10 पेजेस हैं और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट पेज है उसका डेटा जो है वो कॉलम्स की फॉर्म में अपीयर हो, या सारे डॉक्यूमेंट का डेटा कॉलम्स की फॉर्म में अपीयर हो, क्योंकि मैं पेजेस कम करना चाहती हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो सकती है। तो कैसे करेंगे हम ये? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट फॉर्मेट, देन कॉलम, देन कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेटिंग्स में जाके कॉलम्स, कितने कॉलम्स हमें चाहिए, कितने कॉलम्स में आप अपने टेक्स्ट को ब्रेक करना चाहते हो, 1 2 3, इट्स योर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है अप्लाई। आपने पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है या पर्टिकुलर पेजेस पे अप्लाई करना है, राइट। उसके बाद ये बाकी सेटिंग्स हैं, विड्थ, स्पेसिंग, ठीक है। देन विल क्लिक ऑन ओके। तो जो हमारा पेज है वो कॉलम्स में ब्रेक हो जाएगा, लाइक यू कैन सी ओवर हेयर। तो ये टेक्स्ट जो है ये 3 कॉलम्स में ब्रेकअप हुआ है, राइट।